Hello, good morning, students. So, today we are going to discuss chapter 4 of history. The chapter name is Forest Society and Colonialism. Now, see the third point what we have left in the previous video. So, let's start here. In many parts of India and across the world, forest communities rebelled against the changes that were being imposed on them. The leaders of this movement against the British like Sidhu and Kanu in the Santhal Paragans, Birsa Munda of Chota Nagpur, or the Aluri in the Sitaram Raju of Andhra Pradesh are still remembered today in the songs and the stories. We will now discuss in detail one such rebellion which took place in the kingdom of Bastar in 1910. तो देखिए यहाँ पे जो है फॉरेस्ट से रिलेटेड कई सारे लोगों ने मिलके जो बेसिकली जो क्रांति की थी या जो उनका विरोध था उसमें कई लोगों के नाम ऐड थे, जैसे कि सीताराम राजू, बिरसा मुंडा, संथाल जो सिद्धू एंड कानू थे और अलूरी, ये सभी कोई जो है इन्होंने पेड़ फॉरेस्ट के लिए कई सारे विरोध किए थे, तो इनके नाम ही जो है इनमें ऐड है। तो चलिए देखते हैं और किस किस तरह की चीज़ें हुई थी बस्तर में 1910 में, वो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मतलब फॉरेस्ट की कटाई ना हो, फॉरेस्ट अच्छा रह सके, इसलिए जो चीज़ें की गई थी वो हम अब आगे यहाँ देखेंगे। द पीपल ऑफ बस्तर. Bastar is located in the southernmost part of Chhattisgarh and border Andhra Pradesh, Orissa and Maharashtra. The central part of Bastar is on plateau. To the north of this plateau is the Chhattisgarh plain and to its south is the Godavari plain. The river Indravati winds across Bastar east to west. A number of different communities live in Bastar such as Maria and Muria Kons, Dhuwas, Bhadras and the Halbas. They speak different language but share a common custom and belief. The people of Bastar believe that each village was given its land by the earth and in return they took after the earth by making some offerings to each agriculture festival. In addition to the earth, they show the respect to spirits of the river, the forest and the mountain. Since each village where its boundaries lie, the local people look after all the natural resources within that boundary. If people from village want to take some wood from the forest of another village, they pay a small fee called kesari and dan or man in exchange. Some village also protect the forest by engaging a watchman and each household contributes some grain to pay them. Every year there is a one big hunt where the headman of the village in the Pagana cluster of village meet and discuss the issue of concern of including forest. अब देखिए यहाँ पे बताया क्या गया है, बस्तर के जो लोग हैं वो सारी चीज़ों को पूजनीय मानते हैं। बेसिकली वो हर चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। उनका कहना है कि अर्थ ने हमें जो भी कुछ दिया है, लैंड या फॉरेस्ट, उसके बदले हमें उन्हें रिस्पेक्ट देनी है, उन्हें उतना मान सम्मान देना है, ये उनका मानना था। तो वो जो है फॉरेस्ट लाइफ को काफ़ी ज़्यादा उसकी केयर करते थे, हर एक पेड़ को वो अच्छी तरह से उस पर ध्यान दिया जाता था। तो उन्होंने क्या किया था, कई सारे पेड़ों को की ध्यान देने के लिए या जंगल में किसी तरह की कटाई ना हो, इसलिए उन्होंने वॉचमैन्स को रखा था और जब वो अपना काम करते थे तो उसके बदले वो उन्हें अनाज या पानी को अनाज दे के उस चीज़ को चुकता करते थे, यानी पैसे के बदले ये चीज़ें दे दी जाती थी। Now we'll see the fears of people. When the colonial government proposed to reserve a two-thirds of the forest in 1905 and stop shifting cultivation, hunting and collection of forest produce, the people of Bastar were worried. Some villagers were allowed to stay on in the reserve forest on the condition that they worked free for the forest department in cutting and transporting trees and protecting the forest from fires. Subsequently, this came to known as the forest villages. People of other villages were displaced without any notice or compensation. For long, villagers had been suffering from increased land rents and frequent demands for free labor and goods by colonial officials. Then came the terrible famine in 1899 and the 1900 and again in 1907 to 1908. Reservation proved to be the last straw. अब देखिए यहाँ पे जो है कई सारे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो जो है उसे 2/3 जो उसका पोर्शन था फॉरेस्ट का उसे रिज़र्व
में शो किया गया। मतलब आप वहाँ पे जो है किसी भी तरह का कटिंग नहीं कर सकते हैं, किसी भी पेड़ को काट नहीं सकते, उनकी आपको केयर करनी है बेसिकली। तो ये चीज़ें वहाँ पे की गई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। People begin to gather and discuss this issue in the village council, in bazaars and the festivals, or wherever the headmen and priests of the several villages were assembled. The initiative was taken by the Durwas of the Kangar forest, where reservation first took place. Although there was no single leader, many people speak of Gundadur from a village, Netnar, as the important figure in the movement. In 1910, mango box and the lump of earth, chilies, and the arrows began circulating between villages. These were actually messages inviting villagers to rebel against the British. Every village contributed something to the rebellion expenses. Bazaars were looted, the house of the officials and traders, schools and the police stations were burnt and robbed, and granary distributed. Most of those who were attacked were in some way associated with the colonial state and its oppressive law. William Ward, and missionary who observed the events wrought from all directions, came streaming into Jagdalpur. Police merchants, forest peons, schoolmaster and immigrants. अब देखिए क्या हुआ, ये जो इशू था, मतलब जिस तरह से लोगों को रोका जा रहा था और कंपनसेशन के लिए कहा जा रहा था कि मतलब ताकि लोग जो है बेसिकली फॉरेस्ट को ना कट करें और ये सारी चीज़ें हो, तो इससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा था लोगों में और लोग जो उनके लोग थे उनमें भगदड़ मच रही थी कि ये सारी चीज़ें कैसे किस तरह से आ रही है, कहाँ से रिजर्वेशन को लाया गया है, रिजर्वेशन क्यों है, इनको नहीं होना चाहिए। तो कई तरह की ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे आई गई और कई ये सारी डिस्कशन जो है बाज़ार में या फिर जो भी हेडमैन होते थे या प्रीस्ट होते थे, जो सरपंच हैं या फिर जो भी उस गांव के जो भी मुखिया होते थे, उनसे जो उनके साथ मिलके इस पे बात की जाती थी। फिर इससे क्या हुआ, एक टाइम के बाद लोगों में इतना ज़्यादा जो रिबेलियन नेचर था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि लोगों ने मिलके इसका विरोध करना शुरू किया। तो कई सारे जो बाज़ार हैं उनको लूट लिए गए, काफ़ी चीज़ों को जला दिया गया, चुराया गया, जो भी अनाज थे उन्हें वापस से लोग चुरा के रीडिस्ट्रीब्यूट करने लगे। तो इस तरह की चीज़ें जो है वहाँ पे होने लगी, तो ये माहौल जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ का तब ख़राब हो गया। नाउ विल सी द ब्रिटिश सेंट ट्रूप्स टू द सप्रेस द रिबेलियन। द आदिवासी लीडर ट्राइड टू निगोशिएट बट द ब्रिटिश सराउंडेड देयर कैंप्स एंड फायर्ड अपॉन दैम। अब देखिए जो भी ब्रिटिश जो बेसिकली जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन्होंने कई सारे लोगों को भेजा ताकि वो जितने भी रिबेलियन हैं जो इस तरह का विरोध कर रहे हैं, जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनको रोका जा सके। लेकिन जो भी आदिवासी लीडर हैं उन्होंने उनसे ट्राई भी किया गया ताकि बात करके इन सारी चीज़ों को शांत कर दिया जा सके और उन्हें रोका जा सके। After that, they marched through the villages for flogging and punishing those who had taken a part in the rebellion. और उसके बाद उन्होंने लोगों को जिन्होंने भी ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दिया या ऐसी चीज़ को जो है आगे तक मतलब बेसिकली इन चीज़ों को जिन्होंने बढ़ावा दिया उनको ढूंढ के उनको पनिश किया गया। नाउ सी मोस्ट विलेजेस वर डिजर्टेड एज पीपल फ्लैड इनटू द जंगल्स। बहुत सारे विलेजेस जो हैं वो खाली हो गए क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग जो है जंगल की तरफ भाग गए। इट टुक देयर मंथ्स फॉर द ब्रिटिश टू रिगेन कंट्रोल, however never managed to capture the Gundadur. In a major victory for the rebels, work on reservation was temporarily suspended and the area to be reserved was reduced to roughly half of that land before। और इस वजह से क्या हो रहा था कि जो कंट्रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश ऑफिसर्स का बाकी लोगों पे, वो कंट्रोल जो है काफ़ी हद तक कम हो गया था और वापस से इस कंट्रोल को गेन करने में उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन फिर भी वो कभी भी इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाए कि जो गुंडाधुर लोग हैं उनको वो कैप्चर कर सकें। द स्टोरी ऑफ द फॉरेस्ट एंड पीपल ऑफ बस्तर डज नॉट एंड हियर देयर। After independence, the same practice of keeping people out of the forest and reserving them for industrial use continued. और जो स्टोरी थी फॉरेस्ट के पीपल की जो कि बस्तर में थे, वो यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई बल्कि आफ्टर इंडिपेंडेंस भी जो है ये सेम प्रैक्टिस
इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो कंटिन्यू चल रही थी, ये आगे भी चलती। बेसिकली क्या हो रहा था यहाँ पे, जो फॉरेस्ट है, गांव के लोगों का मानना था उस फॉरेस्ट पे सबका हक है, जो भी चाहे वहाँ से अपनी चीज़ें ले आ सकता है, क्योंकि जो भगवान है उन्होंने जो अर्थ दिया है, जो लैंड दिया है, जो कृषि की चीज़ें दी है, जो जंगल दिया है, ये सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। पर जिस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी, उनका कहना था कि वो रिजर्व कर रही थी उस चीज़ को, मतलब उनको, जो बाकी लोग हैं उनको फॉरेस्ट में घुसने का, यहाँ से कोई या फिर वहाँ से कोई भी चीज़ लेने का हक नहीं है, उन्हें वहाँ के लिए रोका जा रहा था, फाइन रखी जा रही थी, ताकि वहाँ से लोग जो है उस चीज़ को यूज़ ना कर सके। नाउ सी आगे, इसी वजह से जो है बेसिकली उनमें ज़्यादातर रिबेलियन होने का कारण बन रहा था। In 1970s, the World Bank proposed that the 4,600 hectares of natural sal forest should be replaced by a tropical pine to provide a pulp for the paper industry. It was only after the forest by local environmentalists that project was stopped. अब देखिए क्या था, वर्ल्ड बैंक का कहना था, उसने एक प्रपोज़ल रखा कि जो भी 4,600 हेक्टर की ज़मीन है, वहाँ के फॉरेस्ट को कल्टीवेट किया जाए, मतलब वहाँ पे जो भी कुछ उगा है उसको काट के साफ़ कर दिया जाए और वहाँ पे वापस से साल की खेती की जाए, यानी साल फॉरेस्ट को वहाँ पे उसे बनाया जाए। जो भी मतलब जो नेचुरल साल फॉरेस्ट जो था उसको बेसिकली, सॉरी, इस यहाँ पे इसको रिप्लेस करके जो ट्रॉपिकल पाइन के जो ट्रीज़ थे उसे लगाया जाए, ताकि वो जो ट्रॉपिकल पाइन है वो कहीं ना कहीं पेपर्स बनाने के लिए काम में आएगा, तो पेपर बनाने के लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो इंडस्ट्री यूज़ पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ऐसा इनका कहना था, पर कुछ प्रोटेस्ट की वजह से जो है, एनवायरमेंटलिस्ट जो थे उनके प्रोटेस्ट की वजह से इस चीज़ को रोक दी गई। Let us now go to the another part of Asia, Indonesia, and see what was happening there over same period. अब चलिए देखते हैं आगे उसी समय में और आगे क्या क्या चीज़ें हुई। Java is now famous as a rice producing island in the Indonesia, but once upon a time it was covered mostly with the forest. The colonial power in Indonesia were the Dutch, and as we will see, there were many similarities in the laws for the forest control in Indonesia and India. Java in Indonesia is where the Dutch started forest management like the British. They wanted timber from Java to build a ships in 1600. The population of Java was an estimated 3.4 million. There was many villages in the fertile plains, but there were also many communities living in the mountains and practicing shifting cultivation. अब देखिए जो जावा है, ये एक आइलैंड है इंडोनेशिया का। अभी जो है ये सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करने के लिए फ़ेमस है, पर एक टाइम हुआ करता था जब ये फॉरेस्ट लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, मतलब फॉरेस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा था। लेकिन कॉलोनियल पावर होने की वजह से जो डच के पास थी, वहाँ पे कई सारी चीज़ें हुई, मतलब वो चाहती थी कि वहाँ का जो भी फॉरेस्ट है वहाँ पे उनका कंट्रोल हो, तो वहाँ पे उन्होंने अपना कंट्रोल करना शुरू किया, और उनका मानना ये था कि वो जावा से ज़्यादा टिम्बर जो है वो ले जा सके, ताकि वो शिप्स को बिल्ड कर सके इन 1600। तो जो जावा की पॉपुलेशन है वो भी 3.4 मिलियन थी, और वहाँ पे का ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन जो थी वो फर्टाइल थी। वहाँ पे आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो माउंटेन्स में भी रहते थे, और वो बेसिकली कल्टीवेशन को जो है वो कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करते थे। The woodcutters of Java. The Kalangs of Java were a community of skilled forest cutters and the shifting cultivators. They were so valuable that in 1755, when the Mataram kingdom of Java split, the 6,000 Kalang families were equally divided between the two kingdoms. Without their expertise, it would have been difficult to harvest teak and for the kings to build their palaces. When the Dutch began to gain control over the forest in the 18th century, they tried to make the Kalang work under them. In 1770, the Kalang resisted by the attacking a Dutch fort at Jona, but the uprising was तो देखिए यहाँ पे बताया क्या गया है, जो कलंग थे जावा कम्युनिटी में, ये काफ़ी स्किल्ड थे फॉरेस्ट की कटिंग के लिए, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स के लिए, और इसके साथ साथ
ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल भी थे। बट इन 1755 जब मातरम किंगडम को डिवाइड किया गया तो 6000 कलंग फैमिलीज जो है वो इक्वली डिवाइडेड हुए बिटवीन द टू किंगडम्स विदाउट देयर एक्सपर्टीज। जो है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि सारी टी की जो मतलब टी के जो है उनको हार्वेस्ट करना और किंग के लिए जो है पैलेस को बिल्ड करना। और इसी टाइम पे जो है डच जो है वो अपना कंट्रोल गेन करना चाहते थे इन सब पे। पर कहीं ना कहीं कलंग ने इस चीज़ का बहुत विरोध किया और उसने रेजिस्ट किया ताकि वो जो है डच उन पे काबू ना पा सके। Now we'll see the Dutch scientific forestry. In the 19th century, when it became important to control territory and not just people, the Dutch enacted forest laws in Java. Restricting villagers' access to a forest, now wood could only be cut for the specified purposes, like making river boats or constructing a house, and only from a specific forest under the close supervision. Villagers were punished for grazing cattle in a young stance, transporting wood without a permit, or traveling on forest road with a horse, carts और cattle। अब देखिए डच की जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री थी वो किस तरह थी। वो जो है 19th सेंचुरी में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रोल था पीपल का, डच पीपल का जावा की विलेजेस पे, फॉरेस्ट पे। कहीं ना कहीं वो एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए था ताकि जो भी वहाँ का फॉरेस्ट लाइफ है उसको यूज़ किया जा सके रिवर बोट्स बनाने के लिए, हाउसेस बनाने के लिए और सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो थी स्पेशल सुपरविजन में थी उनके अंडर। और कई सारे विलेजेस जो हैं उनको पनिश भी किया जाता था जब वो अननेसेसरी या विदाउट परमिशन किसी चीज़ को कट कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ फॉरेस्ट में ट्रैवल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कैटल और अदर थिंग। As in India, the need to manage forest for a shipbuilding and the railway led to the introduction of forest service. In 1882, the 280,000 sleepers were exported from Java alone. However, all this required a labor to cut the trees, transport the logs, and prepare the sleepers. The Dutch first imports the lands and land being cultivated in the forest and then exempted some villages from these lands if this worked out collectively to provide a free labor and buffers for cutting and transporting the timber. This was known as the Blundergiston system. Later, instead of a rent exemption, forest villagers were given a small wages, but their right to cultivate forest and land was restricted. जो डच है वो जब यहाँ पे मूव हुए इंडिया की तरफ तो उन्होंने क्या किया, यहाँ की फॉरेस्ट लाइफ से जितना ज़्यादा हो सके लॉग्स जो हैं वो ले जाने की कोशिश की टू बिल्ड अ शिप्स एंड बिल्डिंग्स। और इसके साथ साथ ही बेसिकली जो उनका मेन मोटो था वो ये था कि 280,000 स्लीपर्स जो थे वो उनको बनाने थे फ्रॉम जावा से ही सिर्फ और सिर्फ जो है इसे बना के ले जाने थे। तो जो पहला टारगेट था जावा से उनका वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ जो है ले जाई जा सके ताकि वो ट्रेन्स के स्लीपर को बना सके। इन सारी चीज़ों का जो है कहीं ना कहीं बहुत विरोध भी किया गया पर कहीं ना कहीं वो चीज़ पूरी नहीं की जा सकी। जैसे कि जो डच थे उन्होंने क्या किया, उस फॉरेस्ट के कुछ एरिया को रेंट कर लिया। ठीक है, उन्होंने रेंट कर लिया कि इतने सालों तक जो है हम आपको इसका रेंट देंगे और यहाँ पे रही हुई चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। बट कहीं ना कहीं डच ने यहाँ पे धोखा किया, उसने वहाँ की चीज़ों को यूज़ तो किया बट कई विलेजर्स को वहाँ का रेंट नहीं दिया उस फॉरेस्ट का। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें जो है उन्होंने वहाँ पे की और उनको वहाँ पे उस फॉरेस्ट को यूज़ करने का भी हक नहीं दिया। मतलब उनके लिए रेस्ट्रिक्शन था कि वो वहाँ पे जाके वो किसी भी तरह का कल्टीवेशन नहीं कर सकते, कोई कल्टीवेट नहीं कर सकता। Now we'll see the Salmon's challenge. Around 1890, the Surontico Salmon of Randalburg village, a teak forest village, began a questioning state ownership of the forest. He argued that the state had not created the wind, water, earth, and wood, so it could not owe it. Soon a widespread movement developed. Amongst those who helped organize it were Samin's son-in-law. In 1907, to 3,000 families were following his ideas. Some of these Samins protested by lying down on their land when the Dutch came to survey it, while the others refused to pay taxes or fines or perform a labor.
अब देखिए जो साइमंड्स थे उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया डच की, जिस तरह से डच उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे, उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया, उन्होंने उस चीज़ का विरोध किया, उनसे लड़ाई की उनकी फैम बेसिकली। और इस आइडिया का सपोर्ट जो है काफ़ी लोगों ने किया, और ये प्रोटेस्ट जो है काफ़ी टाइम तक चलता रहा। लोग जो है अपनी ज़मीन पे लेट गए ताकि वहाँ की ज़मीन, वहाँ की चीज़ों को काटा ना जा सके। इवन जो डच है वो सर्वे करने के लिए आए, पर उन्होंने क्या किया, वो किसी भी तरह का ना तो लेबर बनना चाहते थे या फिर टैक्स भी नहीं लेना चाहते थे। तो बेसिकली बहुत अच्छे से उन्होंने जो है इस चीज़ का प्रोटेस्ट किया और अपनी चीज़ को बचा सके। Now here we'll see the war and deforestation. The First World War and the Second World War had a major impact on forest. In India, working plants were abandoned at this time. The forest department cut trees freely to meet a British war needs. In Java, just before the Japanese occupied the region, in the Dutch followed a scorched earth policy, destroying a sawmills, burning a huge piles of giant teak logs so that they would not fall into a Japanese hands. The Japanese then exploited the forest recklessly for their own war industries, forcing a forest villagers to cut down the forest. Many villagers used this opportunity to expand a cultivation in the forest. After the war, it was difficult for the Indonesian Forest Service to get this land back, as in India, people needs for agricultural land has brought them into a conflict with the forest department desire to control the land and exclude the people from it. अब देखिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसका काफ़ी ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट पड़ा फॉरेस्ट लाइफ पे। अगर हम इंडिया की बात करें तो इस टाइम पे जो वर्किंग प्लान्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अबैंडन किए गए, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ जो है वो काट कर ले जाई गई नीड्स के लिए, जापान और बाकी जगहों पे। तो कई सारी चीज़ें जो सॉ मिल्स थे इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, कई सारे पाइल्स जो जायंट टीक्स थे जो है उनको जला दिया गया, और कई सारी चीज़ें जो है वो गलत हाथों में पड़ गई। तो इस तरह के रेकलेस बिहेव की वजह से कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट वॉर के कारण जो फॉरेस्टेशन है वो डीफॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया और बहुत सारी चीज़ जो है बर्बाद कर दी गई। New development in the forestry. Since 1980, the government across Asia and Africa have begun to see that the scientific forestry and the policy of keeping forest community away from the forest has resulted in many conflicts. Conservation of forest rather than collecting a timber has become a more important goal. The government has recognized that in order to meet this goal, the people who live near the forest must be involved. In many cases across India, from Mizoram to Kerala, dense forests have survived only because villages protected them in the scared groves known as sarnas, Devkandu, Kam, Rai, etc. Some villages have been patrolling their own forest with each household taking in it turns. Instead of leaving it for the forest guard, local forest communities and the environmentalists today are thinking of different forms of forest management. अब देखिए जो न्यू डेवलपमेंट फॉरेस्ट पॉलिसी आई उसके अंदर क्या था कि कई सारे लोग जिस तरह से, मतलब पहले क्या होता था कि सिर्फ फॉरेस्ट के लोग ही, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते थे वो उसका ख्याल रखते थे। बट कई इंडिया में क्या हुआ, जो मिज़ोरम या केरला के पास की जो जगह जो काफ़ी डेंस एरिया है फॉरेस्ट का, तो यहाँ पे लोकल लोगों ने ही, जो भी फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, उनको ये राइट दिया गया, उनको ये काम दिया गया कि आपको खुद फॉरेस्ट की रखवाली कर रहे, तो वहाँ के लोग खुद होके जो है वो फॉरेस्ट का ध्यान रखने लगे। मतलब कोई भी अननेसेसरी कट कर नहीं कर सकता वहाँ पे, फॉरेस्ट लाइफ का बेसिकली उन्होंने ध्यान रखा। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बताई गई है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर जो है यहाँ ख़त्म होता है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू फॉर द डे।